Hello students, today we are doing our next topic, that is the derivatives of functions in parametric form. Hope so you have studied all the previous topics. Parametric forms. Now what do you mean the parametric form? When x and y are the functions of some other variable t, theta or any other alphabet. So let x equals to function of t and y equals to function of t. This form is called parametric form with t as a parameter. देखो x और y जनरली क्या होता था कि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x होता था, लेकिन अब x भी आपके पास फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है, तो कोई एक अनदर पैरामीटर यूज़ हो गया and this form is called parametric form. Now how to find the questions of this form? Let x equals to f of t and y equals to g of t. First of all, we will find dx upon dt and dy upon dt. After that, we have to find dy upon dx. This is equals to dy upon dt upon dx upon dt. Where dx upon dt cannot be equals to 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाते हैं तो हमारा डेरिवेटिव ही क्या बन गया, वो इन्फिनिटी बन गया. So let's discuss it with an example. Find dy upon dx if x equals to a cos theta and y equals to a sin theta. अब देखो x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है, दैट मीन दिस इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड dx upon d theta. This is equals to minus a sin theta. Next dy upon d theta. This is equals to a cos theta. Now dy upon dx equals to dy upon d theta upon dx upon d theta. So dy upon d theta, that is a cos theta upon minus a sin theta. a से a cancel हो गया, that is minus cot theta. So this is the answer. Let's take another example. Find dy upon dx if x equals to at square and y equals to 2at. So as before, we will find dx upon dt. This is 2at and dy upon dt. This is equals to 2a. So dy upon dx equals to dy upon dt upon dx upon dt. This is equals to 2a upon 2at. 2a से 2a cancel हो गया, so 1 upon t is your answer. Find dy upon dx if x equals to a into theta plus sin theta and y equals to a into 1 minus cos theta. So as before, find dx upon d theta. This is equals to a into theta का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव, दैट इज cos थीटा. नाउ dy अपॉन d थीटा, a इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर है तो यहाँ हमारे पास आ गया साइन थीटा. नाउ dy अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. a से a कैंसिल हो गया, साइन थीटा का फॉर्मूला खोलोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉज ऑफ थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. कॉस थीटा बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन कॉज ऑफ थीटा बाई 2. तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दिस इज टेंजेंट थीटा बाई 2 and this is the answer. Let's take another example. Find dy upon dx if x raised to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 equals to a raised to power 2 by 3. This question can be solved directly also and with the parametric form also. So let पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए हमें x और y इसको किसी और पैरामीटर की फॉर्म में लिखना होगा. सो लेट x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा.
हमने यहाँ कोस क्यूब इसलिए माना है, तो ए रेस टू पावर तो 2/3 हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में भी है, और कॉस क्यूब की पावर जब 2/3 करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर रह जाएगा। एंड y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा। अब हम पुट करके भी देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हमारे पास यही चीज़ आती है या नहीं आती। सो ए कॉस क्यूब थीटा रेस टू पावर 2/3 प्लस ए साइन क्यूब थीटा रेस टू पावर 2/3. So this is equals to a raised to power 2/3 cos square theta plus a raised to power 2/3 sin square theta. अब a raised to power 2/3 कॉमन, रिमेनिंग है आपका cos square theta plus sin square theta and this is equals to 1. So a raised to power 2/3 and which is equals to right hand side. So यानी जो हमारी assumption है that is true. Now solve it. dx upon d theta, this is equals to a into 3 cos square theta. cos theta का डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन थीटा, यानी -3a cos square theta sin theta and dy upon d theta a into 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यानी 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. नाउ dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल्स टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, यानी 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा. साइन थीटा से ये हमारा ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया, 3a से ये 3a कैंसिल हो गया. सो माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट थीटा. बट क्योंकि हमने यहाँ अपनी तरफ से इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके गए थे, सो टेंजेंट थीटा को भी हम y और x की फॉर्म में आंसर देंगे. नाउ y अपॉन x, दिस इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा अपॉन a कॉस क्यूब थीटा. a से a कैंसल, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट क्यूब थीटा, यानी टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस cube root of y upon x. This is the answer. Now question number 7 from the worksheet 5.6. Find dy upon dx if x equals to sin cube t upon root of cos 2t and y equals to cos cube t upon root of cos 2t. First of all find dx upon dt. This is equals to डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ कॉस 2t. सो दिस इज इक्वल्स टू रूट cos 2t इंटू साइन क्यूब t का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस साइन क्यूब t एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन पहले स्क्वायर रूट का, यानी 1/2 रूट ऑफ cos 2t. cos 2t का डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन 2t, 2t का डेरिवेटिव करोगे दैट इज़ 2 अपॉन cos 2t हो गया. अब यहाँ इसके साथ भी एलसीएम लोगे, सो दिस इज इक्वल्स टू cos 2t पावर 1 ये है, हाफ ये है, तो यानी 3/2. इसके साथ एलसीएम हो गया, यहाँ पहले 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इसके साथ एलसीएम लोगे दैट इज़ cos ऑफ
2t बन गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया साइन 2t। So this is equals to 3 cos 2t sin square t cos t प्लस साइन क्यूब t है यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला खोलोगे दैट इज़ 2 sin t cos t अपॉन cos ऑफ 2t रेज टू पावर 3/2। तो साइन टी और कॉस टी कॉमन, रिमेनिंग है आपका यहाँ पर 3 cos ऑफ 2t इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी अपॉन cos 2t raised to power 3/2. Similarly, we can find dy upon dt by solving the same way. dy upon dt, denominator का square, denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator. So root of cos 2t as it is, इसका derivative that is 3 cos square t minus sin t minus of cos cube t एंड इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t का डेरिवेटिव दैट इज़ 2 एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन साइन t cos t रिमेनिंग इज माइनस 3 cos 2t प्लस 2 cos क्यूब t एंड अपॉन cos ऑफ 2t रेज टू पावर 3/2। नाउ फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx दैट इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू लिख ली हमने और अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू लिख दी। डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया। यहाँ दोनों के न्यूमिनेटर में साइन t cos t कॉमन था वो कैंसिल हो गया। रिमेनिंग इज 3 cos 2t साइन t प्लस 2 साइन क्यूब t अपॉन 2 cos क्यूब t माइनस 3 cos 2t cos t। नाउ न्यूमिनेटर में से हम साइन t कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग है आपका 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t अपॉन डिनोमिनेटर में से cos t कॉमन 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t। नाउ cos 2t का फॉर्मूला साइन में 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t अपॉन cos t 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t का फॉर्मूला cos की फॉर्म में ही 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। नाउ 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t अपॉन 2 cos स्क्वायर t माइनस 6 cos स्क्वायर t प्लस के 3 हो गया। तो इसको सॉल्व करके 3 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, तो साइन t से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ cos t से मल्टीप्लाई कर लिया। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन 3t एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ cos 3t। तो साइन 3t अपॉन cos 3t दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट 3t। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's discuss question number 11th from the exercise 5.6. If x equals to square root of a raised to power sin inverse t and y equals to square root of a raised to power cos inverse t, show that dy upon dx equals to minus y upon x. So first of all solve dx upon dt. This is equals to 1 upon 2 square root of a raised to power sin inverse t into
derivative of a raised to power sin inverse t. This is equals to 1 upon 2 square root of a raised to power sin inverse t into, जैसे हमने a raised to power x का डेरिवेटिव किया था, a raised to power x log a, तो सेम एज हमारे पास यहाँ पर a raised to power sin inverse t log a. Now next derivative of sin inverse t. This is equals to 1 upon 2 square root of a raised to power sin inverse t into a raised to power sin inverse t log a into sin inverse t का डेरिवेटिव दैट इज़ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. तो यहाँ स्क्वायर रूट से आपका ये कैंसिल होके स्क्वायर रूट रह गया. दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a raised to power sin inverse t log a upon 2 root of 1 minus t square. Same as we will do dy upon dt. dy upon dt फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट का करोगे 1 अपॉन 2 रूट ऑफ a raised to power cos inverse t इंटू a raised to power cos inverse t का a raised to power cos inverse t log a इंटू cos inverse t का डेरिवेटिव दैट इज़ -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. तो ये स्क्वायर रूट से आपके पास कैंसिल होके स्क्वायर रूट ऑफ a raised to power cos inverse t हो गया. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a raised to power cos inverse t log a upon 2 square root of 1 minus t square. Now dy upon dx, this is equals to dy upon dt upon dx upon dt. So this is minus square root of a raised to power cos inverse t log a upon 2 raised to 2 into square root of 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन dx अपॉन dt क्या था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर साइन इनवर्स t log a अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो गया, दोनों के न्यूमिनेटर में से log a कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट a raised to power cos inverse t upon square root of a raised to power sin inverse t. That means this is the value of y and this is the value of x, यानी माइनस वाई अपॉन एक्स. तो यही हमारे पास प्रूफ करने के लिए था राइट हैंड साइड में. सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. इफ़ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल द टीचर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.